Hello students, again a very warm welcome to Dakshina e-classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well, you're healthy, happy and enjoying. So we are proceeding towards our new lecture, next lecture, which is second lecture of light, reflection and refraction. In the last lecture, we had discussed about some things we observe around us, some natural phenomena we observe around us, and then we tried to link those things with physics and basically with light, that all those things can be explained with the help of light. And one by one we are going to answer, but I'll give you time to think about it and try to find out the answers to all of them, because at the end of the chapter we'll have nothing, not nothing, we'll have some things left from that those phenomena, because few things that will not be able to understand right now, but later on in the later classes, higher classes, you'll be able to understand all those things. So we'll try the questions, as many as questions we can answer with the help of the syllabus we have right now. So in the last lecture, when we started the basically light, reflection and refraction, we had seen the reflection, which we have already studied in class 8, and there we had studied the reflection from plane mirror and the laws of reflection, how reflection happens from plane mirror and how the image is formed in the plane mirror, right? And it is same as the size of object, it is the height or the size of the object is same. Okay, so the distance of object and image from the mirror is same. So all these things we have already seen. Now in the new lecture or the 10th, you are in class 10th, so वो सब आपने 8th में पढ़ा था. So in class 10th we are going to get a step ahead. So we are going to study here spherical mirrors. So spherical mirrors, spherical मतलब sphere, मतलब कि this ball is in spherical in size, correct? It's a sphere. Sphere मतलब अगर आप बात करो, स्फेयर को अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, सर्कल को अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, बट स्फेयर इज अ 3D ऑब्जेक्ट, है ना, 3D में है ये. इसको आप इस प्लेन पे नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपके पास कोई सर्कल है, इफ आई कट अ पेपर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, आई कैन कीप इट हियर, दैट इज अ प्लेनर ऑब्जेक्ट, है ना, वो एक प्लेन है. या फिर इट्स अ 2D ऑब्जेक्ट, तो हमने उसको यहाँ रख दिया, एक सर्कल सर्कुलर अगर मैंने पेपर कट किया और यहाँ पे रखा तो वो इस प्लेन पे आ जाएगा, बट ये इस प्लेन पे नहीं आएगा, है ना, ये इस प्लेन पे नहीं आएगा, इसको 3D चाहिए, इट रिक्वायर्स 3D. सो स्फेयर इज द 3D ऑब्जेक्ट, सर्कल इज अ 2D ऑब्जेक्ट. बट अगर आप पेपर पे बनाओगे तो पेपर में आप 3D ड्रॉ कर नहीं सकते, इसलिए आप कैसे बनाते हो, सर्कल और स्फेयर दोनों सेम दिखता है. तो चलो ये तो बेसिक चीजें हैं. तो स्फेरिकल मिरर मतलब थोड़ा सा स्फेरिकल शेप होगा, कुछ ऐसा सुनने से लग रहा है. सो बेसिकली हम कल मैंने बोला था, या लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी कर्व्ड मिरर्स. सो कर्व्ड मिरर्स में हम लोग जो बेसिक यूज जो करते हैं अपने डेली लाइफ में, वी यूज स्फेरिकल मिरर. ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेट ना होकर के या पूरा ऐसा प्लेन ना होकर के अगर थोड़ा सा कर्व है तो उसको कर्व बोलेंगे. और यहाँ पे हम कैसा कर्व यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग स्फेरिकल काइंड ऑफ कर्व. ठीक है, अब भाई स्फेरिकल मिरर कैसे बनेगा, तो हमने स्फेरिकल मिरर में दो मिरर वी आर गोइंग टू स्टडी, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव. कौन कौन से, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर, राइट? Now first thing we are going to study is how convex mirror and concave mirror are formed, some basic terminology related to those spherical mirrors, and then we are going to study the image formation with the help of concave and convex mirror. So first thing, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि convex mirror and concave mirror form कैसे होते हैं. तो जैसे आपने स्पून देखा होगा, है ना, न्यू स्पून इफ यू हैव, अगर उसमें आप देखोगे तो एक तरफ इट इज क्या कहना चाहिए, गहरी होती है, दूसरी तरफ उठी हुई होती है. जैसे अगर इस हम प्लेट की बात करें, दिस प्लेट, एक तरफ ये कैसा है, यहाँ पे गहराई है अंदर, और दूसरी तरफ ये उठा हुआ है. ठीक है, तो ये एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है क्योंकि बीच में यहाँ थोड़ा सा गोल है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा ऐसे बीच में ऐसा कुछ ना दिया होता तो ये एक स्फेरिकल आपका मिरर बन जाता. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इस सरफेस को पॉलिश करें तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा, अगर इस सरफेस को पॉलिश करें तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा. ठीक है, तो इस तरीके से बनते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर. अब कॉन्वेक्स कौन सा होता है, कॉन्केव कौन सा होता है, वो हम बताएंगे. तो ये जो मैंने शेप बताया, ठीक है, इस शेप की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास एक बड़ा सा स्फेयर है, जैसे कि ये छोटा सा स्फेयर है, अब सोच के देखो, इस स्फेयर को अगर हम बीच से कट करते हैं, इफ आई कट दिस फ्रॉम मिडल, तो क्या बनेंगे,
दो कटोरी टाइप के आपके हेमिस्फीयर बन जाएंगे, है ना, आधा स्फीयर और आधा स्फीयर, हेमिस्फीयर। इसको अगर मैंने बीच से कट किया तो दो हेमिस्फीयर बन जाएंगे। अगर मैंने थोड़ा सा साइड से कट किया तो एक साइड वाला बड़ा सा कटोरा बनेगा कुछ इस तरीके से, उसकी ओपनिंग कुछ ऐसे होगी, ठीक है ना, थोड़ा सा बेकार बन गया तो समझ लेंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर हमारे पास इस तरीके से स्फेयर है और इसको यहां से कट किया तो कैसा बनेगा, ऊपर एक, इसको अगर यहां से कट करते हैं तो यहाँ पे एक हेमिस्फीयर बनेगा और यहाँ पे एक हेमिस्फीयर बनेगा, राइट, दो कटोरे बन जाएंगे। लेकिन अगर मैंने क्या किया, उसी को यहां से कट किया, ठीक है, यहां से अगर हमने कट किया कर दिया तो ये एक बनेगा छोटी सी कटोरी और ये एक बनेगा बड़ा सा मटका, है ना, दिस विल बी स्मॉलर वन, दिस विल बी बिगर वन। और अगर ऊपर से कट करते हैं थोड़ा, यहां से कट कर दिया अगर, तो कैसा बनेगा, ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। समझ में आ रही है बात? तो ये जो है ऐसे छोटे छोटे स्फेयर हम लोग यूज करने वाले कि एकदम ऊपर से कट कर दिया, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग वी आर गोइंग टू यूज एज द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इससे हमें कोई काम नहीं इस वाले पार्ट से, और इनसे तो काम है ही नहीं, इतने बड़े बड़े तो हम यूज करने वाले भी नहीं है। तो स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है कि आपके पास एक मान लो कांच का बड़ा सा स्फेयर था, ठीक है, उस स्फेयर से आपने क्या कट किया, छोटा सा इस तरीके से एक पार्ट कट कर लिया, सो दिस इज योर मिरर। अब इसमें क्या है, इसमें ये जो बनेगा भाई वो हॉलो स्फेयर रहेगा, तभी तो यहाँ पे ये पार्ट खाली रहेगा ना, नहीं तो पूरा का पूरा ये भी भरा रहेगा, दिस विल बी कवर्ड पूरा। तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा, ये पूरा प्लेन रहेगा, अभी ये खाली है, अगर यहाँ पूरा का पूरा स्टील भरा होता तो ये पूरा पैक रहता, वैसा नहीं, हॉलो हमने एक ट्रांसपेरेंट एक स्फेयर लिया, उसमें से हमने क्या किया, इस तरीके से कट कर लिया, तो यहाँ बनेगा अंदर गहरा और यहाँ बनेगा ऊपर उठा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसमें हम लोगों ने इसको पेंट किया, इसको अगर हमने पॉलिश किया तो ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग बनेगी और इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। किसको बोलते हैं कि अगर हमने किसको, इस पार्ट को अगर हमने पॉलिश कर दिया तो ये जो उठा हुआ पार्ट है ये कैसा बनेगा, ये बनेगा रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो उठा हुआ जो पार्ट है, दिस पार्ट है ना, दिस पार्ट विल बी रिफ्लेक्टिंग एंड उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, इस तरीके से। तो जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, द पार्ट विच इज इनसाइड और विच इज डीप वाला जो है, दिस इज पॉलिश्ड and when it is polished this will be reflecting। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो लाइंस मैंने बनाई छोटे छोटे लाइंस, दिस रिप्रेजेंट्स द पॉलिश्ड थिंग, कि यहाँ पे पॉलिश कर दिया गया है, एंड दिस इज रिफ्लेक्ट द सरफेस विच इज रिफ्लेक्टिंग। सिमिलरली जैसे अगर इसकी बात करें, हमने अंदर वाले को अगर पॉलिश किया, इस पार्ट को अगर हमने पॉलिश किया तो क्या होगा, दिस पार्ट विल बी रिफ्लेक्टिंग, दिस पार्ट विल बी रिफ्लेक्टिंग, यहाँ पे हम 2D बना रहे हैं, ठीक है, दिस पार्ट विल बी रिफ्लेक्टिंग। तो इसलिए अंदर वाले को हमने कर दिया पॉलिश, देखो ये अंदर वाला है ना, अंदर वाले को कर दिया पॉलिश एंड दिस पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा आता है कॉनकेव मिरर। सो इफ वी विल डू द ऑपोजिट विल गेट कॉनकेव मिरर। अगर हमने इसको पॉलिश कर दिया देन दिस विल बी रिफ्लेक्टिंग, इफ यू पॉलिश दिस पार्ट दिस विल बी रिफ्लेक्टिंग। तो इसको हम बोलते, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने इसको पॉलिश कर दिया है ना, ऊपर वाले सरफेस को, उसको अगर पॉलिश किया हमने तो दिस विल बी रिफ्लेक्टिंग, ये इनसाइड वाला दिस सरफेस विल बी रिफ्लेक्टिंग, दिस वन, ठीक है, इसको पॉलिश किया, दिस इज रिफ्लेक्टिंग। तो नाउ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, किसको पॉलिश किया है, द आउटर सरफेस, ठीक है, सो दिस इज पॉलिश्ड एंड दिस इज रिफ्लेक्टिंग। समझ में आई बात? सो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वी आर गोइंग टू राइट द डेफिनेशंस, बस अभी बेसिकली समझो कि क्या है। तो स्लोली वी आर गोइंग टू राइट द डेफिनेशंस। अब भाई अगर स्फेरिकल मिरर है तो प्लेन मिरर की तरह तो उसमें आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि प्लेन मिरर में सीधा सीधा जैसा ऑब्जेक्ट था वैसे इमेज बन गई, नो, ऐसा नहीं होगा। अगर आप लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो नवोदय में, जो
लड़कियां तो ज़्यादा नहीं करती, लेकिन बॉयज़ के हाथ में अगर किसी सीनियर के थ्रू अगर कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर वगैरह लग जाए, सो व्हाट दे ट्राई टू डू, या फिर कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस लग जाए, तो व्हाट दे ट्राई टू डू, एक पेपर लेते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दैट लेंस पूरे सनलाइट को एक पॉइंट पे फोकस करते हैं और उसको जलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मजा आता है उस टाइम। तो वो केव मिरर से भी होता है और कॉन्वेक्स लेंस से भी होता है। लेंस हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो अगर आप कहीं से जुगाड़ कर सकते हो कॉनकेव मिरर का, देन यू कैन ट्राई, ठीक है। आप क्या ट्राई करेंगे, कीप इट इन सनलाइट, सनलाइट को फेस करो, उसको किसी पॉइंट पे आपको फोकस होती हुई उसका सनलाइट पूरा एक पॉइंट पे आता दिखाई देगा, वहां पे पेपर रखो, थोड़ी देर में देखना इट विल स्टार्ट बर्निंग। तो अब हमने क्या किया, पहले हमने कॉनकेव मिरर, जैसे अगर मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया एंड ऐसे ड्रॉ किया, सो खुद आंसर करके देखेंगे विच इज कॉनकेव एंड विच इज कॉन्वेक्स। यहाँ पे ये वाला कौन सा है, दिस इज कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव, एंड दिस इज कॉन्वेक्स, ठीक है। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद रह जाएगा। जिसमें उठा हुआ सरफेस इज दी रिफ्लेक्टिंग, हमको रिफ्लेक्टिंग सरफेस से काम है, जिसमें उठा हुआ सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग वो कॉन्वेक्स मिरर है। जिसमें दबा हुआ सरफेस, अंदर घुसा हुआ, द डीप इनसाइड द सरफेस विच इज कर्व्ड, है ना, इनसाइड, दैट इज इफ दैट इज रिफ्लेक्टिंग, वो होता है कॉनकेव मिरर। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है, ठीक है, इन दिस मिरर्स। तो अभी कोई भी एक ले लेते हैं इन दोनों में से। बेसिकली अभी हमने जो लिए, लेट्स से दोनों क्या है, एक ही स्फेयर के पार्ट हैं, दोनों हमने सेम टाइप के लिए शेप, एंड इन वन केस वी हैव पॉलिश्ड दिस सरफेस, इन अनदर केस वी हैव पॉलिश्ड दिस सरफेस, ठीक है। तो इनके रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी अभी मैं बोलूंगी दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो पहली चीज आती है, एक एक करके लिख लेंगे, पोल, ठीक है। पोल क्या होता है, खो खो वाले ग्राउंड का पोल नहीं, या बास्केटबॉल ग्राउंड का पोल नहीं। पोल यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके पास ये मिरर है, ठीक है, इफ यू हैव दिस मिरर एंड कोई भी सरफेस आप रिफ्लेक्टिंग बना सकते हो, ठीक। अभी लेट्स से फॉर नाउ अभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी को नहीं बनाते हैं, ये दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी मिरर, देन इट विल गेट पॉलिश्ड, ठीक। तो मान लेते हैं बनेगा मिरर बाद में ये। तो ये जो आपका मिरर है, बनने वाला मिरर है या फिर बन गया है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव जो भी है, तो बेसिकली इसको कंसिडर कर लो, ठीक है। बीच में थोड़ा सा ये अलग सा पार्ट आ गया है, बट कंसिडर कि मतलब ऐसा स्मूथ टाइप का एक आपने स्फेयर में से कट किया, एंड दिस यू हैव एज अ ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट विच इज गोइंग टू बी अ मिरर। इसका जो ये मिड पॉइंट होगा, दिस मिड पॉइंट इज कॉल्ड पोल, है ना। ये जो मिड पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पोल, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज कॉल्ड पोल, ठीक। दूसरी चीज क्या है, इसमें आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब, कर्व मतलब क्या, कर्व मतलब कुछ भी ऐसे बेंड होकर के बना हुआ, ये हो गया स्ट्रेट और ये हो गया कर्व्ड, ये हो गया कर्व्ड, ये हो गया कर्व्ड, है ना। तो कर्व कैसे कई तरह के हो सकते हैं, ठीक। तो कोई ज्यादा कर्व्ड है, मान लो जैसे इसकी बात करो, जैसे एक ये है, ठीक है, ये बहुत कम कर्व्ड है, और एक इसकी बात करो, ये बहुत ज्यादा कर्व्ड है, ठीक है। तो कितना ज्यादा या कम कर्व्ड है उसको हम बोलते हैं कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कितना ज्यादा कर्व्ड है वो, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस कर्व का सेंटर कहाँ है। किसी भी कर्व को अगर आप बात करो, ऐसे इस तरीके से अगर आपको कर्व दे दिया जाए, तो क्या इसको हम अगर कंप्लीट करें तो एक सर्कल से नहीं बन सकता, क्या बन सकता है। अगर मैंने थोड़ा इस कर्व को इतना ना लेकर के इसका कर्वेचर और छोटा लिया होता है ऐसे, तो फिर क्या होगा, इट विल बी पार्ट ऑफ दिस सर्कल, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है, तो दिस कर्व इज पार्ट ऑफ दिस सर्कल, तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा। दिस कर्व, ये जो बाद में बनाया था मैंने, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस सर्कल, तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा। तो किसी भी कर्वेचर का कुछ ना कुछ सेंटर होता है। अब आपने अभी देखा कि द कॉन्वेक्स मिरर जो हम बना रहे हैं, कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर, बेसिकली स्फेरिकल मिरर, दीज आर बीइंग फॉर्म्ड और कट आउट फ्रॉम एन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से उसको कट किया गया। इसका मतलब when this part was inside that sphere, है ना, ये पार्ट पहले मान लो यहाँ था, इसको उठा करके हमने कट किया और यहाँ पे रख दिया, so this was a part of sphere, so it had a center, it had a radius, right। तो ये जो इस
मिरर को जिस भी स्फेयर से कट किया गया है, जिस भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से कट किया गया है, उसके सेंटर को, उस स्फेयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज ऑन द मिरर? क्या वो मिरर पे होता है? डज इट लाई ऑन द मिरर? डज पोल लाई ऑन द मिरर? यस इट डज। ये क्या है? सेंटर ऑफ दिस पोल, इस सॉरी सेंटर ऑफ दिस मिरर, इस सेंटर का मिरर है उसको हम पोल बोलते हैं। बट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इट इज द सेंटर ऑफ द spherical object from which this mirror has been cut out। तो इसका जो, इसको अगर पूरे को कंप्लीट करें एक सर्कल और उसका जो हम सेंटर बनाए, दैट विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे इस, ये जो मिरर है इसको इस स्फेयर से कट किया गया है, सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सर्कल, दिस मिरर, राइट? अब यहाँ पे आप इसको रिफ्लेक्टिंग बनाओ, है ना, इसको रिफ्लेक्टिंग बनाओ, या फिर इसको पॉलिश करके इसको रिफ्लेक्टिंग बनाओ, that is a different thing, but its center of curvature will be fixed if you have cut it from this। अगर आप किसी और इससे कट करते हो, इसकी रेडियस कुछ और है, इसका सेंटर कुछ और है, so it will have a different center of curvature, right? Similarly, ये हो गया center of curvature। Similarly, radius of curvature, when this mirror was a part of this sphere, it had a radius, है ना, ये इसकी रेडियस थी, so इस डिस्टेंस को r को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच दिस मिरर हैज बीन कट आउट, ठीक है? इस मिरर को जिस स्फेयर से कट किया गया, उसके, उस स्फेयर के रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ यू कैन डेफिनेटली सी कि अगर ये स्फेयर को हमने, इस मिरर को अगर हमने इस स्फेयर से कट किया, ठीक है, इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। So what we have done, अगर हमने इस स्फेयर से, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हमने यहाँ पे इतने मिरर को कट किया है, ठीक है, दिस इज द मिरर, मान लो हमने इसको यहाँ रिफ्लेक्टिव बना दिया, तो अब क्या होगा? दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पूरा डिस्टेंस। अब अगर ये आपका, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये, अगर ये आपका मिरर है तो इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा? दिस, इट विल बी समवेयर हियर, इसको इससे ज्वाइन करते हैं, तो दिस PR डिस्टेंस, दिस PR डिस्टेंस, दिस पॉइंट इज C, ये है R, दिस PC डिस्टेंस विच इज इक्वल टू R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बना, ठीक है, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं ये ऐसे कुछ बड़े से मिरर से बना होगा, उसका सेंटर कुछ यहाँ पे होगा, तो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल, and the distance between pole and center of curvature, this distance PC is R, this is the radius of curvature। और क्या बोल सकते हैं? center of curvature is the center of sphere from which the mirror has been cut, the radius of curvature is the radius of the sphere from which the mirrors have been cut, so this is the radius of curvature, center of curvature। इसके बाद आता है aperture, है ना? तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही आपने इसको कट किया, जैसे मैंने कट करके बताया था कि मान लो हमने इसको, ये था, यहां से हमने इस जगह से कट कर दिया, ठीक, तो ये हो गया गायब, इसको कर दो गायब, सो नाउ इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, राइट? कुछ ऐसा दिखेगा, या फिर अब डायरेक्टली बना लेते हैं, फिर कुछ ऐसा दिखेगा जैसे मैंने वो प्लेट दिखाया था आपको, कुछ इस तरीके से दिखेगा ये, है ना, क्योंकि इट्स नॉट अ 2D स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा बन गया ये। वी हैव एक बड़ा सा स्फीयर था, उसमें से हमने थोड़ा सा कट किया तो कुछ ऐसा बन गया। तो नाउ ये जो पार्ट होगा, ये आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट होगा, क्योंकि हमने पेपर पे बनाया है तो पूरा पूरा नहीं आ पा रहा है, लेकिन ये जो पार्ट होगा दिस विल बी स्फेरिकल, स्फेरिकल बनेगा ना। इसको भी आप ऐसा मान सकते हो कि किसी स्फेयर से कट किया गया है, तो ये कैसा दिख रहा है? इजंट दिस अ सर्कल? ये सर्कल है ना, एक सर्कल है ये। अगर ये एक सर्कल है तो इसकी भी कुछ रेडियस होगी, तो या फिर इसका भी कुछ डायमीटर होगा, तो इसके डायमीटर को, मतलब कि इसके किसी भी एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट के डिस्टेंस को, जो कि इसका डायमीटर होगा, उसको हम बोलते हैं एपर्चर। दिस इज द एपर्चर, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा? दिस विल बी दी
एपर्चर, ये पूरा जो डायमीटर है इसको हम बोलते हैं एपर्चर। तो दीज आर फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू दी स्फेरिकल मिरर। क्या क्या है? पोल है, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब और एक नया टर्म क्या आता है? फोकस। फोकस, तो फोकस को समझने के लिए पहले आपको वही एक्सपेरिमेंट करना होगा। कौन सा? जो अभी मैंने बताया, पेपर बर्न करने वाला। सो व्हाट हैपेंस, भाई सन इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा सन है, और उसको उसकी लाइट जब एक कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर पे पड़ी, इट वाज फोकस्ड ऑन अ पॉइंट। सारी की सारी लाइट एक पॉइंट पे फोकस हो गई, ठीक है। उस पॉइंट को, जो जो पॉइंट मिला ना जहां पे सारी की सारी लाइट फोकस हो गई, उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर आप पोल से निकालते हो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द सनलाइट, ये कोई डेफिनेशन नहीं है फोकस की, बट अभी जो हम लोग पहला जो वे होगा टू अंडरस्टैंड फोकस वो ये होगा, द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ऑफ द पॉइंट वेयर द सनलाइट इज फोकस्ड, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट where the sunlight is focused from pole, or the distance of the point from pole where the sunlight is focused is called the focal length। ठीक है, तो focal length क्या हो जाएगा? जहां पे focal length मतलब कि the distance of point where the sunlight is focused, उस point का distance from pole is called the focal length। और उस point को, the point where, ये हो गया focal length एंड फोकस क्या होगा? द पॉइंट वेयर द सनलाइट इज फोकस्ड, जिस पॉइंट पे सनलाइट फोकस हो गई उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पोल से किसी डिस्टेंस पे, आप उस पोल से किसी डिस्टेंस पे जाओगे तो वहां पे लाइट फोकस हो गई, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। इसके बारे में थोड़ा आगे और बताएंगे, उससे पहले आप समझो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस का बहुत यूज होगा आगे भी, मतलब सारे ही टर्म्स का यूज होगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जो मैंने बना दिया है ना यहाँ पे, ये जो लाइन मैंने बना दी है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सो बेसिकली द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपका ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर मिरर, ठीक है, दिस इज द पोल एंड दिस इज द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। So center of curvature is for this sphere. So from center of curvature, if you join the point of pole or the point which is center of this mirror, this pole is the center of this mirror, ठीक है, आप उनको join करते हो तो इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब सोच के देखो, will this principal axis be perpendicular to the your mirror? क्या वो उससे यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा? क्या ये परपेंडिकुलर होगा टू दी मिरर? सोच के देखो, यस। यहाँ से आप कोई भी लाइन बनाओ यहाँ पे, ठीक है, वो इतने पार्ट पे, इस पे दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, यहाँ से लाइन बनाए तो इट इज परपेंडिकुलर हियर, यहाँ से लाइन बनाए तो इट इज परपेंडिकुलर हियर, है ना। तो सेंटर से कोई भी लाइन अगर आप सरफेस की तरफ बनाते हो, इट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट स्मॉल, इतने से पार्ट पे अगर आप देखो, या फिर इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो इट विल बी परपेंडिकुलर, राइट। यहाँ पे बनाया, अगेन इट इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन आप यहाँ पे ज्वाइन करो, भाई इस पे अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये हमारा मिरर है, दिस इज द लास्ट 2 पॉइंट्स ऑफ द मिरर, सॉरी दीज टू लास्ट 2 पॉइंट्स ऑफ द मिरर। तो यहाँ से आप ज्वाइन करते हो, ये है परपेंडिकुलर, यहाँ से ज्वाइन करते हो, ये है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर। तो जब आप एक प्लेन मिरर में व्हेन यू यूज टू ड्रॉ नॉर्मल, कल हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए थे खूब सारे, है ना, बीम वॉज कमिंग ऑन द प्लेन मिरर एंड एट एवरी इंसिडेंट पॉइंट हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था। तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ मिरर, ठीक है। तो दीज आर, जो भी आप सेंटर से लाइन ज्वाइन करोगे टू दी मिरर, है ना, मिरर पे आप कोई भी लाइन ज्वाइन करोगे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू दी मिरर। या फिर आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से इस पे ज्वाइन होने वाली सारी लाइंस आर दी नॉर्मल टू दैट मिरर, है ना। इस पॉइंट पे अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, यू विल ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स। अगर इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, दीज आर ऑल नॉर्मल, ये भी एक नॉर्मल है।
ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है। सो दीज विल बी दी सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे आने वाली एवरी लाइन इज नॉर्मल टू द मिरर, राइट। सो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकस क्या है, फोकस क्या है, द पॉइंट वेयर द सनलाइट वॉज फोकस्ड, अभी तक हम इतना ही समझे, द पॉइंट वेयर द सनलाइट वॉज फोकस्ड। तो हमने आगे चल के आप जब समझोगे तो आप ये देखोगे कि किसी भी मिरर के लिए स्फेरिकल मिरर की जब आप बात करते हो, फोकस क्या होता है, वही पॉइंट जिस पे जब लाइन पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस जब आती हैं एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स फोकस्ड ऑन अ फिक्स्ड पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे सारी की सारी लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस हो जाती हैं, उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। और ये जो फोकस है, फोकस का डिस्टेंस, यहाँ पे और एक डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। अभी तो वही बताया था कि फोकल लेंथ पोल से जब आप जिस उस पॉइंट पे जाओगे जहां पे सनलाइट फोकस हो गई थी, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द सनलाइट इज फोकस्ड फ्रॉम पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, है ना। ये थोड़ा सा डेफिनेशन उल्टा मतलब द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पोल वेयर द सनलाइट इज फोकस्ड इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। अब एक चीज जो ऑब्जर्व की गई है वो क्या है, धीरे धीरे वो भी बताएंगे आपको कि ये जो फोकल लेंथ जो आती है, दिस फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ जो आती है ये टोटल क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये फोकल लेंथ आती है फॉर मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स r/2, ठीक। ऑल्सो ये जो फोकस है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, भाई फोकल लेंथ अगर r/2 है, r/2 मतलब ये हो गया r और ये है r/2, तो यहाँ पे होगा आपका फोकस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से, ठीक है। तो कैपिटल F इज द फोकस एंड दिस इज स्मॉल f मतलब फोकल लेंथ, C is center of curvature, R is radius of curvature, so this can be written as F, so R can be written as 2F. So radius of curvature is double of the focal length. Focal length क्या है, the distance of pole from focus. Focus क्या है, focus is the point where all the parallel lights parallel to principal axis will get focused after reflection is called focus, ठीक है। So these are few terms related to स्फेरिकल मिरर्स। इसके अलावा और एक टर्म क्या है, पेरेक्सियल रेज, है ना। पेरेक्सियल रेज मतलब कि रेज हमें पता है लाइट की जो रेज है बहुत सारी, ठीक है। सो पेरेक्सियल रेज आर दी रेज विच आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके पास पास की जो रेज होंगी, है ना, ज्यादा दूर की नहीं, पास पास की जो रेज होंगी, पैरेलल रेज, दीज आर कॉल्ड दी पेरेक्सियल रेज। एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पास पास, बहुत ज्यादा दूर नहीं कि यहाँ पे रेज आ रही हैं, ठीक है। सो पास पास में जो रेज है उनको हम पेरेक्सियल रेज बोलते हैं। एंड फॉर नाउ आप लोग पेरेक्सियल रेज का ही रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे कि हम जो मिरर्स अभी पढ़ने वाले हैं, वी विल हैव स्मॉल एपर्चर। स्मॉल एपर्चर मतलब कि एपर्चर क्या होता है कि इसके ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, यहाँ बना के बताया था ना, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, यहाँ जो हमने बनाया था कि ये अगर हमारे पास मिरर है तो दिस इज द एपर्चर, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज द एपर्चर। स्मॉल एपर्चर के मिरर से हम पढ़ेंगे। वाई इट इज सो, ये हम आपको आगे बताएंगे कि स्मॉल एपर्चर के जो मिरर है वही हम क्यों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग पेरेक्सियल रेज का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, स्मॉल एपर्चर ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा और एक जो टर्म है आपका जो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता बट आपको पता होना चाहिए, दैट इज फोकल प्लेन। जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी पॉइंट से अगर आपको एक सिंगल पॉइंट दिया है तो सिंगल पॉइंट से क्या आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, यस, इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस सिंगल पॉइंट, ठीक है। इससे प्लेन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी एक प्लेन है, ये पॉइंट जो है वो इस प्लेन में भी है, इस प्लेन में भी, अगर यहाँ पे ऐसा प्लेन रखें उस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है। सो ये जो है आपका फोकस, इससे पास होने वाले प्लेन को हम बोलते हैं फोकल प्लेन, है ना। अगर हम लोग एक प्लेन बनाए, लेट्स से दिस इज अ प्लेन, इसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन। बहुत ज्यादा यूज नहीं होता ये टर्म बट पता होना चाहिए। सो दिस इज फोकल प्लेन। तो दीज आर फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर।
आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर्स। पहले हम कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। हम लोग सारी की सारी चीजें एकदम आराम से करने वाले हैं, डोंट वरी, बस ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। नोट्स बनाने का मन करे बना लो, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए, ऐसा बिना समझे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। समझो, चीजों को अच्छे से समझो, एक एक टर्म को अच्छे से समझो। कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर के बारे में और एक डेफिनेशन क्या दी जा सकती है कि इफ यू टॉक अबाउट कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डज इट फेस द सेंटर ऑफ कर्वेचर? Does it face the center of curvature? No, the reflecting surface is not facing the center of curvature. ये आपका spherical mirror है ना, और center of curvature इस साइड है। तो in convex mirror the reflecting surface is not towards the center of curvature, it is opposite. लेकिन अगर आप concave mirror की बात करो तो concave mirror में this is center of curvature and this is reflecting surface. So in case of concave mirror the reflecting surface is towards the center of curvature. In convex mirror the reflecting surface is not towards the center of curvature. Reflecting surface is not towards the center of curvature. तो ये भी एक तरीका है कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर को के बारे में बताने का कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है। बट अब जो याद रखने वाली बात है कि कॉनकेव यही होता है और कॉन्वेक्स यही होता है। कॉन्वेक्स में अंदर वाला पॉलिश होता है, बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग होता है। कॉनकेव में अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग, बाहर वाला पॉलिश, ऐसा होता है। ये चीज याद, आप तो कुछ ट्रिक भी लगा सकते हो। उसके अलावा आप धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करने लग जाओगे, जब आप एक्सपेरिमेंट कर लोगे, अगर आपको स्कूल में जाने मिला और एक्सपेरिमेंट करने मिला, तो धीरे धीरे ये चीज़ याद रह जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे टेबल है ना, वो आपको रटना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें जब आप बार बार यूज़ करते हैं तो अपने आप दिमाग में रह जाती है, तो ये भी चीज़ें रह जाएंगी। सो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहेंगे, खूब मेहनत करेंगे और इन्जॉय करेंगे, है ना। इन्जॉय करो, अपने आप सारी चीज़ें होती जाएंगी। enjoy these things, enjoy the nature around you, ठीक है। ask questions to yourself about things around you, be curious lifelong, ठीक है। enjoy, all the best, bye bye।